Yes, Balak, tell me, everyone. Audio and video both are clear to all of you, beta. Yes, Balak, tell me, everyone. Audio and video both are clear, yeah, to all of you. Okay. So good evening. Yeah, now it is beta second lecture of control system, in which we will discuss beauty of transfer function as well as, my dear friends, pole and zero concept of the transfer function. Why these pole and zero are so important in the control system theory or to analyze the system? Okay, we will see difference in between, my dear friend, time domain and frequency domain. As you know that this transfer function topology is nothing but frequency domain system or the system representation in the frequency domain. So why this transfer function is so popular? Okay, almost in everywhere, if we will if we want to consider, my dear friend, analog system or control system will definitely, even in mathematical modeling, okay, in power system analysis, in electrical machine, in analog, in communication system, so almost everywhere we have to use such type of technique. Okay, so sometimes with our frequency domain analysis is really somewhat better in or with respect to time domain analysis. So can you tell me, beta, what is the basic difference in between time domain analysis and frequency domain analysis? Tell me, everyone, beta, audio and video both are clear? कुछ लोग हल्का सा हेलो आए करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, जल्दी से। तो कोई एक डिफरेंस बता सकता है आप में से, बेटा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन टाइम डोमेन एनालिसिस एंड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस? कोई हल्का सा। Okay, before that, again, I want to tell you that this subject is control system. We are starting for GATE 24 and 25, and you know very well already batch related to beta GATE 24 and 25 in GATE under 24/7 already are started, beta, already started. So if you want to take subscription for the new batch, you can join, okay, or you can use my code Y503, okay. Now, beta, अगर आप कोड यूज करते हैं Y503, तो definitely you will get maximum discount as well as, my dear friend. ओके, यस, कुछ कहिए बेटा सभी लोग, फिर मैं थोड़ा सा रिदम ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, तो हल्का सा हेलो आई कहिए और टेल मी फास्ट, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी लोग यार शेयर और लाइक कर दो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेटा, ऑलरेडी अवर न्यू बैच स्टार्टिंग, सो इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर द स्टार्टिंग, अगर हम ये कहें तो ऑलमोस्ट बेटा हम लोग 6-7 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन फॉर दैट न्यू बैच। ओके, फॉर दैट यू कैन यूज माय कोड Y503 फॉर एनी न्यू कोर्स लाइक 1 year program or 2 year program, or sometimes if you want you can take individual courses also। ओके, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं बेटा ट्रांसफर फंक्शन पे। किस पे बात करना चाह रहे हैं? ट्रांसफर फंक्शन पे। तो ट्रांसफर फंक्शन पे बात करते हैं। पहले कल हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की थी, वहीं से आगे बढ़ते हैं विद ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन समझने से पहले जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे करा जो कल किया था बेटा, उसी टाइप से एक क्वेश्चन छोटा सा आज करूं। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा कि जैसे कल जो एग्जांपल किए थे उन्हीं में से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आर की आर एल लोड है एंड बेटा समवेयर हियर वी आर हैविंग सम स्विच, वन मोर रेजिस्टेंस इज देयर। और अगर हम इस सिस्टम को बेटा डीसी सप्लाई से एक्साइट करें, सो कैन यू टेल मी इन दिस केस व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ करंट आईटी? आप कहोगे डेफिनेटली सर, इन दिस केस वी कैन टेल द रिस्पांस ऑफ करंट आईटी। नाउ सी बेटा, जब सर्किट का साइज स्मॉल है, when the circuit size is somewhat small beta, in that situation definitely we can calculate or we can find out the response of current or voltage, because in general जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, इन तीनों की स्ट्रीम में हम मेनली हैंडल करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। So that's why in general we have to consider the performance of voltage, current and so on in the system. So that's why I just want to take beta current response. But अगर यही मैं इलेक्ट्रिकल कोर की बात करूं, so they can consider, my dear friend, torque response, they can consider speed response and so on. वहीं पे मैकेनिकल और सिविल की बात करें तो वो अलग अलग पैरामीटर पे काम करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको लाइक सरलता के लिए एक करंट या वोल्टेज से
डिनोट कर रहा हूं सिस्टम को। तो जैसे कोई भी एक सिस्टम दिया है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ करंट आईटी। डेफिनेटली यू विल टेल आइदर एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, बिकॉज इट इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम व्हिच इज गोइंग टू बी एक्साइटेड बाय डीसी वोल्टेज सप्लाई। इतनी बात क्लियर है बेटा टू एवरीवन? फटाक से बोलो, डीसी वोल्टेज सप्लाई। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं बेटा एक आर लगा यहाँ पे, एक आरएल और लगा, एक सी यहाँ लगा, फिर एक आर लगा, फिर एक आरएल, मान लीजिए कुछ भी, फिर आरएल सी, इस टाइप से कुछ भी अरेंजमेंट चल रहा है। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ करंट। आप कहेंगे सर ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बिकॉज नाउ ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज रियली वेरी a large, we can say nth order system, maybe 50th order system, 100th order system, maybe 150th order system, 25th order system, जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था। जब हम कल बात कर रहे थे वाला, तो आपने ध्यान दिया हो इन द पावर सिस्टम, इन द मैथमेटिक्स आपने देखा ही होगा कि जो अपनी मैट्रिक्स होती हैं वो 5x5 में चली जाती हैं, 10x10 में चली जाती हैं, 300 में चली जाएंगी, 500 में चली जाएंगी। तो जब इतने सारे एलिमेंट किसी सिस्टम में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली द साइज ऑफ मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज। और इस वजह से अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें तो डेफिनेटली बेटा यहां पे आइगन वैल्यूज भी इंक्रीज होंगी, आइगन वेक्टर भी इंक्रीज होंगे। सो हाउ वी कैन डील सच टाइप ऑफ सिस्टम? वी कैन सी बेटा with efficient way or with very easy mathematical job। तो हम ऐसा क्या करें कि एक ह्यूज नेटवर्क को हम कम से कम टाइम में डील कर लें। बस यही एक क्वेश्चन उठा, और जब ये क्वेश्चन उठा तो पहली बार बात आई निकल के ट्रांसफर फंक्शन की। सो व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन वी विल सी, बट उससे पहले फिर से एक बार समझिए, अगर सिस्टम का साइज स्मॉल है, यानी कि इन जनरल अगर मैं ये कह दूं बेटा सॉरी इन आवर प्रैक्टिकल वर्ड, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, या हार्डली थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, तो यहां तक हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन की बहुत अच्छी खासी नीड नहीं पड़ती है। बहुत ध्यान सुनना, इफ वी आर हैविंग माय डियर फ्रेंड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम और हार्डली थर्ड ऑर्डर सिस्टम, देन वी डोंट रिक्वायर इन जनरल फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। We can achieve the response of the circuit element in that time domain, but definitely we don't require too much complex mathematics, because with the third order तक की equation तो हम वैसे भी solve भी करते हैं। Problem arises when order of the system is really somewhat higher, for example 10, 20th, 50th, 300, 500, 1000। तो अगर इतना हाई ऑर्डर है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ओके, उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम टेंटेटिवली चीजों को समझ लेंगे। ओके, लेकिन अब मुद्दा उठता है कि सर ठीक है, एक सबसे बड़ी बात आई ट्रांसफर फंक्शन को अचीव करने के पीछे कि जब ऑर्डर ऑफ द सिस्टम हाई होता है तो हम इसकी बात करते हैं, लेकिन व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन उस पे हम जाते हैं बाद में। ठीक है, अब एक पॉइंट ये आया कि सर अगर हम कोई भी सिस्टम कंसीडर करें, बहुत ध्यान सुनना बेटा, सर अगर कोई भी हम सिस्टम कंसीडर करें तो उसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ भाई ठीक बात है सर, रजिस्टर है अलग बात है, या रेजिस्टेंस है अलग बात है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, चलो उनके स्टोरेज चार्ज को भी हम इग्नोर कर देते हैं, बट व्हाट अबाउट यार इंडक्टर एंड कैपेसिटर? They will store finite amount of energy, and definitely the energy stored by inductor and capacitor we can't ignore beta before running the system। बिफोर रनिंग द सिस्टम मतलब जिस सिस्टम को हम रन करना चाह रहे हैं उस सिस्टम में जितने भी इंडक्टर और कैपेसिटर हैं, अगर वो इनिशियली एनर्जाइज्ड हैं, उनके पास पहले से कोई एनर्जी अमाउंट है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट जैसे बेटा हम एक बड़े ऑर्डर सिस्टम को सॉल्व करने जा रहे थे तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि when the system elements, for example inductor and capacitor especially, having initial amount of charge, then the behavior of system will come into the category of non-linear। I'm going to repeat my sentence beta, the system responses will come into the category of non-linear। So what we can do at this moment, because whatever control system we are going to deal at the level of graduation, that control system comes into the category of linear control system। So definitely at this moment my dear friend, we have to ignore the initial amount of inductor or capacitor energy, otherwise we can't handle the system response in very easy or efficient way with the help of transfer function।
ओके, तो अगर हम ट्रांसफर फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझे तो आप बता सकते हो बेटा ट्रांसफर फंक्शन बेसिक कंसेप्ट जो इसका होता है वो कहां से आया होगा, बेसिक। ओके, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर बेटा अगर हम बात करें एक लीनियर सिस्टम की, जो अभी तक मैंने आपको समझाया था वही फिर आगे चलते हैं। टिल नाउ एनी डाउट यार, सभी लोग बोला करो यार। जैसे बेटा एक सिंपल सी मैं बात आपके सामने लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे कि यार अगर बेटा हम लोग बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा हर पॉइंट को, अगर हम बात करें सब ट्रांसफर फंक्शन की, तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से बहुत इजी ये है, बहुत ध्यान सुनना बेटा। ट्रांसफर फंक्शन पहला मेरा क्वेश्चन ये है। ओके, ध्यान से समझिए बेटा, a linear system, a linear causal, a linear causal time invariant and time invariant system can be analyzed beta in very easy way in comparison to beta non-linear system, in comparison to non-linear and time variant system or non-causal system, time variant system. So hopefully you are getting my point. बहुत ध्यान से पॉइंट को कैच करिएगा सभी लोग बेटा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करने से पहले, आप गेट 24 25 के स्टूडेंट हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए, और यकीनन तौर पे मैं कहूंगा बेटा आने वाले 30-35 मिनट में आप ट्रांसफर फंक्शन और पोल्स और थ्योरियों की जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो मतलब परिकल्पना से परे है। फिर से सुनिए, एक लीनियर कॉजल टाइम इनवेरिएंट जो सिस्टम होती है उसकी एनालिसिस बहुत इजी होती है, और इसीलिए आपकी जो कंट्रोल सिस्टम की बुक्स होती है उनके ऊपर लिखा रहता है लीनियर एलटीआई कंट्रोल सिस्टम, ऐसे देखा होगा आपने। सो लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम, तो ये रहा ओपन। ओके, लेकिन डेफिनेटली बेटा जब अपना सिस्टम नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट हो जाता है तो द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम विल बी रियली वेरी कॉम्प्लेक्स, समटाइम्स मैन्युअली that response analysis is not possible. So for that we require either good quality of mathematics, okay, or good we can say knowledge of mathematics, or we can say with software help, or you can say tool like statecom or not statecom, pscade or pscide or matlab etc. तो जितने भी सिस्टम होती है जिनमें नॉन लीनियरिटी या टाइम वेरिएंट के कंसेप्ट जुड़ जाते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है और जो इजीली पॉसिबल नहीं है। बट जो सिस्टम बेटा कॉजल लीनियर टाइम इनवेरिएंट होते हैं उनकी एनालिसिस काफी इजीली हो जाती है। और ये लीनियर कॉजल टाइम इनवेरिएंट से एक निकल के आती है बेटा, आपने सुनी होगी लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉजल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम बात करते हैं। ओके, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। नाउ बेटा let us consider, बहुत ध्यान सुनिएगा, let us consider a linear differential equation, now see बेटा अगर हम एक नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मान लें और मैं आपसे कहूं कि इसको ऐसे लिख देते बेटा d of xt divided by d of t plus x of t is equal to some बेटा, या इसको ऐसे लिखते हैं सम a of t या y लिख देते हैं यहाँ पे is equal to sum बेटा x of t. So this is the representation of linear differential equation. But the beauty of the linear differential equation, you know very well yaar, this differential equation may have initial condition. So differential equation always defined with initial values if initial values are not zero. Okay, so every differential equation will have initial values also. Okay, so with consideration of initial values, with consideration of initial values, okay, with consideration of initial values, इतनी बात क्लियर है बेटा? पक्का ना? With consideration of initial values. तो प्रॉब्लम ये आई कि सर अगर फिर से सुना बेटा, अगर सर ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज समवट स्मॉल या लो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो ठीक है, लेकिन ऐसे सोचिए बेटा 20th ऑर्डर का सिस्टम है,
50th ऑर्डर का सिस्टम है, तो आप टाइम डोमेन एनालिसिस कैसे कर पाओगे? इट इज रियली नॉट इजी ना। तो अभी तक जो आप कर रहे हो ये क्या है बेटा? टाइम डोमेन एनालिसिस। सो वट एवर सर्किट और इक्वेशन you are going to handle by differential equation, then such type of analysis is called, my dear friend, time domain analysis. Okay, so this thing is called, my dear friend, time domain analysis. इसको क्या बोलते हैं बेटा? टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस, ध्यान दीजिएगा हर बात पे। Time domain analysis. So time domain analysis is really not easy, my dear friend, when our system or order of the system is somewhat high. Okay, तो अगला पॉइंट देखते हैं, टाइम डोमेन एनालिसिस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टाइम डोमेन एनालिसिस अगर हम इसकी बात करें और इसके इफ एंड बट्स देखें सारे, तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, इट इज इजी फॉर लो ऑर्डर सिस्टम। ओके, सो टाइम डोमेन एनालिसिस, उसको हम टीडीए लिख देते हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट। So time domain analysis (TDA) is easy, okay, is easy or not so complex. ऐसे लिख देते हैं, or not so complex, or not so complex when order of the system, when order of system is low. When order of system is low. So when order of the system is low, then definitely, please mind it, beta, time domain analysis is somewhat easy. Second point. Time domain analysis definitely will tell us each and every point of the response. पता नहीं आप सुन रहे हो सही से कि नहीं, समझो इस बात को। Time domain analysis will guide us, my dear friend, for every, we can say बेटा, behavior, for a behavior of response for every instant. मतलब whatever instant you need बेटा, at that instant you can calculate the behavior of the system. So the response of the system is defined at every instant. At every instant. So wherever you want to control your response, you can easily control. You can easily control. So time domain analysis with respect to accuracy is the best thing. Is the best thing. Okay. So second point, beta, time domain analysis is really very good when system order is low. Generally we can say order is less than 3 or 4 only. Okay. Second point, अगर हम आए, so TDA, time domain analysis, is very helpful. Is very helpful. Okay, is very helpful to determine. Okay, response behavior. To determine response behavior at every instant. Behavior at every instant. मतलब जहां भी आपको चाहिए वहां पे आपको चीजें मिलेगी. With the help of time domain analysis. With the help of, my dear friend, time domain analysis. एक बार सभी लोग यार थोड़ा थोड़ा बोला करो, तो आप जानते हो फैकल्टी का मूड बनता है, सही से चीजें एक्सप्लेन होती हैं। देखो जितना अच्छा आप सुन रहे हो, जैसे आप प्रेजेंट तो हुई, इसी में हेलो है लिख दो, हाँ सर समझ में आ गया, अरे सर ये तो बड़ा प्यारा पॉइंट था, हम लोग तो जानते ही नहीं थे। अच्छा सर एक बात बताएं, जब हम कंट्रोल सिस्टम बीटेक में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था टाइम डोमेन एनालिसिस, और सर अभी याद आ रहा है सेकंड ऑर्डर सिस्टम से ज्यादा नहीं पढ़ा था, थर्ड ऑर्डर सिस्टम की बात नहीं की थी। और सर ना गेट में जब भी पढ़े थे तब भी हमसे किसी ने थर्ड ऑर्डर सिस्टम की बात नहीं की, लेकिन जैसे ही सर हम रूट लोकस में प्रवेश किए, जैसे ही सर हम बोडे प्लॉट निक्विस्ट प्लॉट में एंटर किए, पोलर प्लॉट में एंटर किए, सर ऑर्डर की तो कोई चिंता ही नहीं थी। राउथ हर्बर्ट सर ऑर्डर की हमने कभी चिंता ही नहीं की, चाहे s टू पावर 10 लिखा हो, चाहे s टू पावर 50 लिखा हो। हाँ टाइम थोड़ा बहुत कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ऑर्डर की हमने कभी चिंता नहीं की। क्यों नहीं की? ये सोचना चाहिए था बेटा ना आपको। क्यों? कंट्रोल सिस्टम की हर बुक में लगभग आप ऐसे मोटा मोटी मानिए बेटा 25 से 30% पेजेस में आपका टाइम डोमेन एनालिसिस होता है, और बचे हुए में लगभग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस होता है। अगर आप एनालॉग पढ़ रहे हैं, आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, एवरीवेयर इन जनरल वी वांट टू यूज, माय डियर फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। व्हाई वी आर नॉट सो सीरियस अबाउट द टाइम डोमेन एनालिसिस? बिकॉज़ माय डियर फ्रेंड, रीजन इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्सिटी। यार when the order of the system is going to be increased, the system response or the calculation of system response is going to be somewhat complex here. Okay, और अगर ये complex हो गया तो आपको पता ही है प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हैं ना? So this point I think must be clear to everyone. This point must be clear to everyone. अब यार एक बात सभी लोग हाँ या ना करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Everyone tell me fast. सभी लोग यार हाँ या ना करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है? अरे आप तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो इस समय, तो अपना
इत्मीनान से के लिए। तो क्या है, टाइम डोमेन एनालिसिस इज इजी, ओके, और नॉट सो कॉम्प्लेक्स when order of the system is low. Second point beta, time domain analysis is very helpful to determine response to behavior at every instant. जहां आपको चाहिए वहां आपको पता चलेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि आपको 20.20 माइक्रोसेकंड पे अपने रिस्पांस के बारे में कुछ पता करना है, तो आपने कहा सर मेरा टाइम में ऐसे कोई रिस्पांस क्या है, हमने यहाँ 0 से टाइम काउंट किया और यहाँ पे मान लो 20.20 माइक्रोसेकंड हो गए, तो हमने इस पे पता कर लिया कि भाई क्या है। मान लो इस पे कोई एक हैवी एम्पलीट्यूड राइज हो रहा है, तो हमने सर यहाँ पे भी पता कर लिया क्या होगा। सो टाइम डोमेन एनालिसिस विल गाइड अस टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एट एवरी टाइम इंस्टेंट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टाइम डोमेन एनालिसिस. So my dear friend, in the practical system in general we want to do time domain analysis. Frequency domain is a more different thing, we will see sometime later. Okay, पहले इसकी समझते हैं. दूसरा पॉइंट बेटा, मैं एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं यार, ऐसे मुझे बताइएगा. I just want to give you one system. Okay, एक एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं आपसे. I just want to give you one system, my dear friend. Let us assume that system having many number of active and passive. Active means obviously not independent, only dependent. Okay. तो मैं आपसे कहा कि इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है बेटा, बीजेटी है, कुछ इस टाइप से एक सिस्टम है आपके पास. अब मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन किया यार कि ये जो सिस्टम है बेटा, दैट सिस्टम यू वांट टू एक्साइट बाय सम डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई व्हाटएवर. सो आई जस्ट वांट टू राइट बेटा, वी वांट टू एक्साइट बाय डीसी सप्लाई. सो नाउ एवरीवन टेल मी वेदर दिस सिस्टम विल बी a stable one or unstable one. सब लोग ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है. टाइम डोमेन में रहिए, वो कंटाप मार दे जब आप रिकॉर्डिंग में सुने या लाइव सेशन में देखें. यू हैव टू गिव फुल कंसंट्रेशन. Simple. One system is something like this, beta. Inside that system, we are having many resistor, many inductor, many capacitor. So order of the system is maybe a 50th order system, or we can say 100th order system. तो मैंने आपसे बोल दिया, चलिए order भी बोल देता हूँ. Order of the system is nothing but 10. Okay. So 10th order system है, यानी कि starting ऐसे होगी s to power 10 plus a s to power 9 and so on. इस टाइप से. तो अगर मैं आपसे सिंपल बात करूँ बेटा, so 10th order system you want to excite DC supply. So now tell me this system will be a stable one or unstable one. How will you determine this thing? सभी लोग बोलते रहिए, how we can determine बेटा this thing. आपने क्या मार्क दिए, ये तो कैसे पता कर ले, इसमें तो कुछ पता ही नहीं हमें. मैंने कहा चलो कोई ना, आप जीत गए, आपको पता नहीं है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट आपने लगा दिए. ठीक है, तो सर मैंने एक काम किया बेटा, एक रजिस्टर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर, एक इंडक्टर, एक बीजेटी, एक और रजिस्टर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर. यहाँ ऐसे बेटा रजिस्टर, एक मॉसफेट लगा दिया एंड सो ऑन. यहाँ ऐसे बेटा एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर. लो अब तो हो गया. ऐसे 2-3 एलिमेंट और लगे, आपका 10th ऑर्डर सिस्टम बन गया. नाउ टेल मी वेदर दिस सिस्टम इज स्टेबल वन और अनस्टेबल वन. आपने कहा रुको सर, for the given input supply whether the system is stable or unstable we cannot say. Okay, directly क्योंकि सर डीसी सप्लाई भी प्रोवाइड करो कितने वोल्ट है. तो मैंने कहा छोड़ो यार, अगर आप इंपल्स टेस्टिंग करो, क्या टेस्टिंग करो, इंपल्स. So you want to apply my dear friend unit impulse voltage. अब तो मैंने डिफाइन कर दिया unit impulse voltage. अगर unit impulse voltage दे रहे, now tell me this system will be stable or unstable. You will say sir directly we can't tell sir, seriously हम ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं कि whether this system is stable or unstable. एक काम करते हैं सर, एक सीआरओ उठाते हैं ना, और सीआरओ पे हमने बेटा अपने इस सिस्टम के आउटपुट को यहाँ पे प्रोब से कनेक्ट कर दिया. Now see the moment when we want to apply by the unit impulse input, okay, unit impulse voltage input to this particular system, then definitely system will excite and our CRO will show some response of the system. Okay, now try to understand my dear friend. The response will appear for the sometime impulsive period, and after that the rest system will decide what will be the output or current or voltage across each element. तो जब आपने यूनिट इंपल्स से इसे एक्साइट किया तो रफली मैंने ये मान लिया बेटा कि किसी एक एलिमेंट का करंट जो है वो कुछ ऐसे आ गया रफली. जब आपने इस तरीके से इसको रीड करना शुरू किया तो आपने कहा सर देखो यहां तक तो ट्रांजिएंट है बट अनस्टेबल नहीं है. क्या नहीं है, अनस्टेबल नहीं है. आप ध्यान देना, आपने इस सिस्टम को रन किया एक लंबे समय तक,
रन चल रहा है, यूनिट बस इनपुट लगा दिया, उसके बाद सिस्टम में जहां भी एनर्जी स्टोर कर रही हुई है वो अपना काम करे जा रही है। और ऐसे करते करते बेटा जब आप रिस्पांस देख रहे हैं सीआरओ स्क्रीन पे, तो देखो ऐसे मिला ऐसे मिला ऐसे मिला, आपने कहा सही है सर, अभी भी ना अनस्टेबल नहीं है। मैंने कहा आगे देखते रहो चाचा होता क्या है। ऐसे करते 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 बेटा कहीं यहां ऐसे रिस्पॉन्स आने लगा, और एक टाइम के बाद बेटा यहां जाके निकला अनबाउंडेड। लेकिन ये जो टाइम था मान लीजिए बेटा वो 10 सेकंड था, तो 10 सेकंड के बाद आपको क्या पता चला कि आपका सिस्टम तो अनस्टेबल था। आफ्टर 10 सेकंड, स्टार्टिंग में नहीं पता चला बेटा, स्टार्टिंग में सिस्टम स्टेबल था, ट्रांजिएंट जा रहा था, ट्रांजिएंट जा रहा था, लेकिन 10 सेकंड के बाद लगभग सॉरी रियलाइज हो रहा है कि सिस्टम इज नथिंग बट अनस्टेबल। Oh my God. So that means, my dear friend, whenever we deal our system in the time domain analysis, then the stability defining is somewhat not easy, or we can say, my dear friend, to define the stability of the system, we have to wait of the response. Okay, so actual response will guide us at what moment our system will be unstable. On that base, we can say, my dear friend, the definition of stability, especially in the time domain analysis for the particular system, will require some finite time. Okay, will require some finite time. Sometimes that time period can be, my dear friend, 1 hour. Sometimes the time period, my dear friend, can be 2 hours, and so on. ओके, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा कि आपने एक कार ड्राइव करके घर से बाहर निकले, ओके, आपने कोई और निकला, एक्स पर्सन घर से जब बाहर निकला तो सिस्टम सही था, आराम से कार चली जा रही थी, आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए, आराम से कार चली जा रही थी। लेकिन सडनली 2 घंटे के बाद पता चलता है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई एक फॉल्ट आ गई। अब मान लीजिए ब्रेक नहीं लग रहे हैं, या मान लीजिए एक्सीलरेटर खराब हो गया, या मान लीजिए क्लिफ प्लेट काम नहीं कर रही है, तो कोई भी एक प्रॉब्लम आ गई। लेकिन आपको कब पता चला? 3 घंटे के बाद। ओके, अगर इसी को बेटा हम पहले से डायग्नोस कर लेते तो हम पहले से बता सकते थे कि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इसको डायग्नोसाइज कराना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं कराया तो फिर प्रॉब्लम आपको 3 घंटे बाद चली। दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन द टाइम डोमेन एनालिसिस। Okay, so see, in the time domain analysis, we cannot directly define the stability of the system. जैसे आपने देखा होगा, आप फटाक से याद करिए, थोड़ा बहुत जो बीटेक में पढ़ा होगा शायद आपने, आपको याद हो बेटा कि हम सर तुरंत बोल देते थे a pose lies in the right half of the plane, so system is unstable। क्या उतनी ही सुंदरता से, क्या उतनी ही सरलता से आप टाइम डोमेन में बोल पा रहे हैं? नहीं, that is the problem। Okay, so please find it that stability we can say beta in the time domain analysis we cannot easily define। Okay, actually stability will decide by the system। Okay, and the system in the time domain analysis beta, we don't know anything about the system in general, so response will guide us whether system will be unstable or response of system will be unstable or stable one। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो अभी अगर हम पॉइंट पे लिखें यहाँ पे, तो ये लिखते हैं in time domain analysis, in time domain analysis, in time domain analysis we can define stability of system, stability of system, stability of system after analyzing the response of, after analyzing the response of system, the response of system। So due to this reason, my dear friend, this particular analysis is really not so good with respect to determine the stability of the system, with respect to determining the stability of the system। So time domain analysis में हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, देखिए आप कहेंगे सर n+a हम बोल देंगे, अरे नहीं, पक्का कैसे नहीं बोल सकते? तो कैसे नहीं बोल सकते हैं, हम बेटा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं nth ऑर्डर सिस्टम की, जहां पे ऑर्डर ऑफ द सिस्टम कैन बी 10th, कैन बी 12th, कैन बी 20th, कैन बी 100, कैन बी 500। तो अब दिक्कत आएगी ना, तब आप इस चीज को समझिए। अरे लो ऑर्डर के लिए तो मैं कह ही रहा हूं बेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन मत ही लगा, पर तो टाइम डोमेन बढ़िया है। Why? Because frequency domain having lot of assumption, my dear friend, it's really not that much of authentic जितना कि टाइम डोमेन एनालिसिस है। लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी डोमेन हिट हुआ, कारण ये था कि कहीं ना कहीं टाइम डोमेन की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा हो गई सिस्टम के ऑर्डर बढ़ने से, जिसके बाद बेटा एनालिसिस करना काफी टफ हो गया। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू मूव इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। बट नॉट नाउ, पहले टाइम डोमेन को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी लोग बताइए बेटा, टिल नाउ द पॉइंट्स आर क्लियर?
टिल नाउ द पॉइंट्स आर क्लियर? गजब करते हो भाई, कुछ तो बोलो यार। आप नहीं बोलोगे बेटा, मैं भी नहीं बोलूंगा, तो कुछ बोलना शुरू करो। बताइए, हर तक कंट्रोल सिस्टम चल रहा है और आप जो है चैट बॉक्स खाली डाले हुए हैं। चलिए आप लोग करिए, मैं शेयर कर देता हूँ दो चार बच्चों को। हाँ जी बेटा, कुछ हल्का रिप्लाई करिए यार सभी लोग, तभी तो बात बन पाएगी। तो अभी तक आप लोगों ने सीखा बेटा टाइम डोमेन एनालिसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? स्टेबिलिटी की है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। बेटा दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है वो निकल के ये आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार जो लोग अभी ज्वाइन किए फिर से समझिए बेटा, हम बात कर रहे हैं discussion of transfer function, but before discussion of transfer function we want to understand beta linear differential equation. Okay, so we want to consider linear differential equation with constant coefficient. Okay, so if a linear differential equation with constant coefficient definitely with may have initial values also. So in time domain analysis beta we have to consider initial values of the system also. Okay, for example initial energy of inductor and capacitor. इसके बेस्ड अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है बेटा टाइम डोमेन एनालिसिस इज इजी और नॉट सो कॉम्प्लेक्स व्हेन ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज लो। सेकंड पॉइंट निकल के आता है टीडीए, दैट मींस टाइम डोमेन एनालिसिस इज वेरी हेल्पफुल टू डिटरमाइन रिस्पांस बिहेवियर एट एवरी इंस्टेंट, सो वेयरएवर वी वांट वी कैन फाइंड आउट। दूसरा पॉइंट निकल के आता है या तीसरा पॉइंट निकल के आता है इन टाइम डोमेन एनालिसिस we can define stability of the system after analyzing the response of the system. So before that it's not so easy. तो अब एक बार सभी लोग यार रिप्लाई करिए, शेयर और लाइक हल्का हल्का करिए ताकि चीजें आगे बढ़ते रहें। तो इतने तो हमने बातें समझ ली, यानी कि टाइम डोमेन एनालिसिस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ एक सुंदरता भी है कि हर इंस्टेंट पे हम जो चाहें वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अदरवाइज हायर ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है और साथ में बेटा स्टेबिलिटी में दम तोड़ा है कहीं ना कहीं। वी हैव टू लाइक एक तरीके से रन आवर सिस्टम, आफ्टर दैट वी कैन फाइनलाइज whether system is actually absolutely stable or not. Okay, so to overcome such problem
of the time domain analysis, we have to move in the frequency domain analysis. Okay, so अगला पॉइंट हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं नोट करके, to overcome, नोट करके लिख सकते हैं बेटा, to overcome problems of time domain analysis. Okay, we have to enter into frequency domain analysis. Okay, शॉर्ट में हम इसे लिख देते हैं FDA, frequency domain analysis. अभी क्लियर है बेटा पॉइंट? सॉरी, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस अभी क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन पे जब आए तो सबसे पहले हमने फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन को लिया। सो लेट अस कंसीडर बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, लेट अस कंसीडर a linear differential equation with constant coefficient okay will be okay। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लें बेटा, सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन my dear friend, we can write something like this, dy by t plus beta some constant a y of t is equal to some constant b x of t। So here we can understand that this y of t is nothing but response and this x of t is nothing but, you know very well, input। So if we will take a Laplace transform of that equation, so we can write, my dear friend, this particular equation in the frequency domain, this is nothing but time domain। okay, तो इतना ध्यान रखना है, ये क्या है बेटा, टाइम डोमेन। ओके, एंड प्लीज माइंड इट, एट दिस इंस्टेंट वी डोंट वांट टू कंसीडर इनिशियल वैल्यूज। ओके, आप चाहो तो लिख लो टाइम डोमेन, लेकिन जैसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, वी आर रियली नॉट सीरियस अबाउट दिस initial values। okay, please mind it, so please mind it, our response may have some initial conditions, our input may have some initial condition, our system may have some initial condition। okay, so see this equation having initial condition, ऐसे लिख देते हैं बेटा, this equation बेटा having initial condition, this equation having बेटा initial values। okay, अगर है तो है और नहीं है तो नहीं, क्या सोचना है ज्यादा, एक बार बताओ, इतनी बात क्लियर है? तो हमने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कंसीडर की, एंड डेफिनेटली इन दिस इक्वेशन माय डियर फ्रेंड बहुत बेसिक से समझो चीजों को, है। तो अगर हम लोग सिंपल वे से बात करें तो dy by dt plus ay of t is equal to bx of t। ओके, अब हम जब इसको बेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, जरा तरीका देखना लिखने का। सो अबव इक्वेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, चेक करना क्या कहना चाहता हूं, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो वी कैन राइट बेटा s y of s plus बेटा a y of s is equal to bx of s। अब कहीं सर आपने इनिशियल वैल्यूज ली नहीं, तो अब मैंने ये कहा दिस इक्वेशन जब लाप्लास लिया इज फ्री फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। वी डोंट वांट टू कंसीडर इनिशियल कंडीशन, व्हाई वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर। ओके, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि दैट इक्वेशन जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखी है इज फ्री फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, इज बेटा फ्री फ्रॉम इनिशियल वैल्यूज, is free from initial values। okay, so we don't have any initial values। initial values किसकी? initial values of input or system, initial values of input or system, input and system दोनों की ही initial values हमने क्या मान ली बेटा? 0। so at the time of converting बेटा this differential equation time domain into frequency domain, we don't want to consider any initial value of input as well as system। so system is free from initial values as well as input is also free from initial values। okay, so now see my dear friend, this particular equation we can rearrange again in this way। so ys, if we want to take common, ys divided by x of s, this one beta is equal to what we can write b by, this is beta s plus a, something like that, s plus a, and this form of the differential equation is called transfer function। see the beauty, this form of the differential equation is called, my dear friend, transfer function। अभी क्लियर है?
This form of the differential equation beta in time domain and converting into frequency domain without any initial values of the input as well as system is called transfer function. So this beauty, okay, whatever observing you on screen beta is called transfer function. So what is transfer function? अगर हम बात करें so what is transfer function, एक बार समझते हैं बेटा. तो अगर हम यहाँ पे डिब्बा बनाए और मैं ये लिखूं बेटा in this box, okay, so this is LTI system और linear time invariant system है तो definitely बेटा free from initial condition होगा. So फिर भी मैं लिख देता हूँ free from initial values. So that means we have to take assumption at this instant by referring the initial value of inductor and capacitor will be 0. एक पॉइंट. दूसरा, एक इनपुट भी तो देना पड़ेगा सर. तो मैंने कहा बेटा इनपुट भी देते हैं तो इनपुट में भी आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इनपुट इज आल्सो फ्री फ्रॉम इनिशियल वैल्यू. सो दिस इज आवर इनपुट. अब ये इनपुट कैसा भी हो हमें नहीं पता बेटा ये इनपुट है क्या, लाइक स्टेप है, यूनिट इंपल्स है या जो भी है हमें नहीं अभी पता नहीं है. लेकिन एक बात कंफर्म है बेटा, व्हाटएवर वी आर हैविंग इनपुट हियर, okay, I just want to tell you here this input is nothing but x of t. Clear beta? X of t is also free from initial value. So is also free from initial values. Is also beta free from initial values. इतनी बात भी क्लियर है? Is also free from initial values. ठीक है बालक? चलो कोई ना कभी तो रिस्पॉन्स करोगे है ना. X of t is equal to input and that is also beta free from initial value. और इस बेस पे जो आपका y of t आएगा, यहां से हम बात करेंगे बेटा ट्रांसफर फंक्शन की. ओके, अभी बताओ इतनी बात क्लियर है. सो दिस इज नथिंग बट आवर आउटपुट. सो दिस आउटपुट माय डियर फ्रेंड अगेन फ्री फ्रॉम initial values. So in this particular output beta, definitely this output will not depend upon past or future, will depend upon instantaneous input value only. So that's why this entire system is called, my dear friend, static system. Okay, so whenever we want to calculate transfer function of the system, our system must be static, not dynamic. Okay, for dynamic transfer function is somewhat different thing. वहां पे हम transfer function but use नहीं करते हैं. क्या use करते हैं we will see sometime later. Okay, हटा दे इस पॉइंट को. तो ये एक वे टू रिप्रेजेंट आवर दिस ट्रांसफर फंक्शन बेटा. अभी बताओ क्लियर है? ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर बेटा एट दिस मोमेंट? डन, आगे बढ़े. चलिए फटाक से बोलिए बेटा ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर एट दिस मोमेंट. ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन ये रहा. अब बेटा अगर हम इसी ट्रांसफर फंक्शन को हम आगे जाके डिफाइन करें तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं? सो therefore transfer function may define transfer function may define by. अभी तक जो मैंने बोला बेटा उस एनालिसिस पे आपको क्या लगता है, कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होना चाहिए? ट्राई टू अंडरस्टैंड. See here, this is the differential equation, my dear friend. और यहीं से हमने ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट निकाला. So see, this differential equation may have initial values, but in the frequency domain, when we want to determine transfer function, our equation beta will free from the initial values. So what we can say beta, Laplace transform of the response, and Laplace transform of the input. So what is the transfer function? Transfer function is nothing but ys by xs Laplace transform of response divided by Laplace transform of input. रुको सर, एक बात बताओ, अगर सिस्टम में इनिशियल वैल्यू हुई तो क्या करोगे? तो सर आप इग्नोर कर दोगे. भाई आपकी डेफिनेशन क्या कह रही है मास्टर जी? आपकी डेफिनेशन कह रही है कि हमें इनिशियल वैल्यूज कंसीडर नहीं करना है, और अगर कर ली तो सर गलत हो जाएगा मामला. तो क्या लिखना चाहिए कायदे से? तो फिर ये लिखना चाहिए y of s is nothing but बेटा Laplace transform of the response की जगह क्या लिखना चाहिए? y of s is nothing but Laplace transform of a, please mind it, of a part of the response, not exactly response, a part of response. So the best definition of the transfer function must be like this beta. Y of s is not Laplace transform of the response. It is actually the Laplace transform of a part of the response.
अभी बताइए क्लियर है कि नहीं? What is access? Access, sir, is nothing but input. But again, the question arising here, beta, if input having some initial value, then what we will say? Then in that case, my dear friend, again we have to ignore the initial value of the input also. So in that case, beta, we can say our input or this access is nothing but beta Laplace transform of the input without any initial condition. Without any initial condition. Similarly, अगर आप इसको ys को सही से पढ़ना चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं. It is nothing but Laplace transform of the response without any initial condition. So on that way we can define. Sorry, on that way, beta, we can define transfer function definition by a two way. Okay, and these ways are nothing but अगर इन रास्तों को इन तरीकों को देखें तो ये है अपने पास ये वाले बेटा. पहले इस मैंने लिख के रखा है सो दैट कि एक अच्छी डेफिनेशन आपके सामने पहुंचनी चाहिए. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन आपके लिए दूं बेटा, तो ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन जो होगी दैट विल बी दिस वन. दैट विल बी बेटा दिस वन. ओके, होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट. दैट विल बी दिस वन. आप पढ़िए जरा और मुझे बताइए दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन. It is the ratio of Laplace transform of a part of output response and Laplace transform of input response with unit impulse excitation. Why unit impulse excitation? We will see. Okay, तो इतनी बात भी क्लियर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अभी मैंने आपको समझाया था यूनिट इंपल्स. क्यों? क्योंकि टेस्टिंग में वही यूज करते हैं. सो यूनिट इंपल्स एग्जैक्टली टेल अस बेटा इन वेरी इजी वे वेदर सिस्टम इज स्टेबल वन और नॉट. ओके, तो अगला it is the ratio of transfer function की बात कर रहे हैं. It is the ratio of Laplace transform of a part of output response and Laplace transform of input response with unit impulse excitation is really very important. And another definition, beta, it is the ratio of Laplace transform of the output response and the Laplace transform of input response with unit impulse excitation and all initial values are zero of system and input दोनों के. Of system and input दोनों के. आप बताइए ऐसा ट्रांसफर फंक्शन कभी आपने पढ़ा हो? ओके, नाउ टेल मी बेटा, ऐसा ट्रांसफर फंक्शन कभी आपने पढ़ा हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा. अगर इस समय आप लोग बिजी हैं तो अलग बात है, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि जिस हिसाब से हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन एक बेसिक लेवल से स्क्रैच लेवल से एडवांस लेवल तक डिस्कस कर दिया, क्या बहुत ज्यादा टाइम लगा? नहीं, हार्डली 30-35 मिनट. तो इतना तो यार ट्रांसफर फंक्शन में देना चाहिए क्योंकि इंटायर कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफर फंक्शन. चाहे आप टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़ो, चाहे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस पढ़ो, हर जगह आप कहीं ना कहीं बेटा ट्रांसफर फंक्शन तो यूज करते ही हैं. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर ट्रांसफर फंक्शन. आगे बढ़ते हैं बेटा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट बेटा, अगर हम बहुत आराम से सुनिएगा, अगर हम इन जनरल वे से डिफाइन करें तो एक बार इसको हम यहां ले आते हैं. व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन? तो ट्रांसफर फंक्शन हम यहां ले आए. ठीक है, डेफिनेशन वाइज. सो दिस इज नथिंग बट बेटा ट्रांसफर फंक्शन. डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. सो ट्रांसफर फंक्शन को जनरली हम डिनोट कर देते हैं बेटा टीएस से, जीएस से, ओके एंड सो ऑन. सर एनीवन इन कमेंट सेक्शन? एनीवन इन कमेंट सेक्शन? नहीं समझा बेटा. एक बार आप ही बताइए. कोई कमेंट सेक्शन है नहीं वैसे, अगर आप पूछना चाहें तो कुछ पूछिए. मैं तो वेट ही कर रहा था बेटा कि कोई रिप्लाई करे. ठीक है, खैर एक लंबा सा लग गया रिप्लाई आने में. एक बार अभी सभी लोग शेयर और लाइक कर दो यार. सो ट्रांसफर फंक्शन बेटा, ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन ये हो गई. अब अगर हम ट्रांसफर फंक्शन को इन जनरल बेसिस समझ आता है तो बेटा इसको सबसे पहले हम डिनोट कर देते हैं कभी टीएस से, कभी डीएस से, कभी जीएस से, ओके, कभी कोई और किसी एचएस से कर देगा. इंडिपेंडेंस यार किसी भी तरीके से कर सकते हैं. इट्स नॉट स्टैंडर्ड वे कि आप जीएस से ही करो कि एचएस से ही करो कि बेटा डीएस से करो कि टीएस से करो. अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से लिख देते हैं. ओके, बट इन आवर केस एनालिसिस आइदर वी विल कंसीडर माय डियर फ्रेंड टीएस और माय डियर फ्रेंड वी विल कंसीडर जीएस. तो अगर मैं टीएस ट्रांसफर फंक्शन को लिखूं सो वी कैन राइट और वी कैन मेंशन ट्रांसफर फंक्शन इन दिस फैशन. बहुत ध्यान सुनिएगा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन? आपने कहा सर कुछ न्यूमरेटर divided by कुछ denominator है टाइप का. ओके, सो n and r are nothing but बेटा polynomials. क्लियर है इतनी बात? एक बार सभी लोग बताइए. सो बेटा ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट न्यूमरेटर polynomial divided by बेटा denominator polynomial.
तो अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बेटा बहुत ज्यादा मैथमेटिकल में ना जाके एक सिंपल वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, मैं आपसे ऐसे कहूंगा, कोई भी सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम बेटा व्हाटएवर यू वांट टू आइडेंटिफाई, दैट थिंग डेफिनेटली यू विल आइडेंटिफाई विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। जैसे जैसे मान लीजिए बेटा आपके सामने जैसे एक स्टूडेंट है ऋषिकेश, तो अच्छा ऋषिकेश तो हम लोग फैमिलियर नहीं है शायद, तो जैसे ऋषिकेश है ना, अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा कि कोई मैंने एक सेंटेंस बोला है ना, अब उस सेंटेंस में आपके काम की क्या चीज है वो आपने ले ली, लेकिन ली कहां से, कोई मैंने सेंटेंस बोला, यानी कि डेफिनेटली कोई एक इनपुट है, इनपुट की वजह से एक आउटपुट आया, बट आपको मान लीजिए बेटा इस सेक्शन का आउटपुट चाहिए बस, बाकी आपके काम का नहीं है। तो आपने ये देखा कि सर आपका इनपुट ये है और हमारे काम की चीज ये है, सो बेटा दिस काम की चीज यानी कि आउटपुट और this divided by input is nothing but needed transfer function to handle the system, to handle the system. What is the, अगर हम इन जनरल बात करें तो अभी देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन की ब्यूटीज क्या क्या हो सकते हैं, हम धीरे धीरे बात करते हैं, ओके स्टेप बाय स्टेप। बट एक बात ये है, एक बच्चा उठा उसने कहा नहीं सर हमारे लिए काम की चीज ना ये वाला पोर्शन था, एक बच्चा उठा नहीं उसने कहा सर हमारे लिए काम की चीज ये था, यानी कि एक ही नेटवर्क है जिसमें एक इनपुट दिया गया है। जैसे मैं आपसे एक सिंपल वे से एक क्वेश्चन रखूं, जैसे बेटा आर एल इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लेते हैं, आर एल सी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए, मान लीजिए कोई बच्चा बेटा यहाँ पे इनपुट दे दिया, कोई बच्चा मेजर करना चाह रहा है इसको आउटपुट, कोई बच्चा कह रहा नहीं सर ये मेरा आउटपुट है, कोई बच्चा कह रहा नहीं सर मेरा आउटपुट ये है, कोई बच्चा कह रहा नहीं सर आउटपुट मेरा ये है, कोई कह रहा आउटपुट मेरा ये है। तो जरा ऑब्जर्व करो, आउटपुट बाय इनपुट इज वन ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट बाय इनपुट इज अनदर ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट बाय इनपुट इज अनदर ट्रांसफर फंक्शन। तो ऐसी तो बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं इन द सिस्टम। भाई हमें कैसे पता बेटा कि किस इंस्टेंट पे कौन सा पॉइंट हमारे काम का है, मान लीजिए x पर्सन के लिए ये वाला काम का है, y पर्सन के लिए ये काम का है, z पर्सन के लिए ये काम का है, q पर्सन के लिए ये काम का है। तो ऐसे करके तो बहुत सारे ट्रांसफर फंक्शन पॉसिबल होंगे ऑफ द सिंगल सिस्टम। यस, और ये सही भी है। फॉर ए सिंगल सिस्टम माय डियर फ्रेंड वी कैन राइट ट्रांसफर फंक्शन इन मेनी वेज, मे बी मोर देन बेटा ऐसे बोल सकते हैं थ्योरेटिकली इनफाइनाइट तरीके हैं उसके लिखने के। दूसरा पॉइंट जो कैप्चर करना हमें इस मोमेंट पे वो ये है बेटा, चाहे ध्यान से सुनना बेटा, चाहे x वाला ट्रांसफर फंक्शन लो, चाहे y वाला लो, चाहे z वाला लो, चाहे p वाला लो, चाहे q वाला लो, एक बात तो कंफर्म है। क्या बात कंफर्म है? ये समझिएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत कितनी बड़ी भी पावर आ जाए वो एक चीज को चेंज नहीं कर सकती है, और वो है ये पार्ट। सुनिएगा इस बात, whatever system we are having, my dear friend, in our real life, what is the transfer function, sir? Transfer function is nothing but the response or the Laplace transform of a part of the response divided by Laplace transform of the input, and definitely the system and input both must have initial values equal to 0 is the definition of transfer function. So here in the circuit, no need to consider any initial condition of input or initial condition of system, my dear friend, and on that way we can define transfer function is nothing but some polynomial numerator divided by denominator. Okay, and all those things are free from initial condition. अब मैंने आपसे कहा चाहे कोई बेटा b नॉट यहां से मेजर करे, चाहे कोई b नॉट यहां से कहीं से भी मेजर करे, एक बात कंफर्म है कि दुनिया की कोई भी पावर डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर सकती। व्हाट इज दिस डिनोमिनेटर part is nothing but beta the matrix of this, which matrix, my dear friend, incident matrix of the system, जो आपने पढ़ी होगी सर्किट थ्योरी में। मैट्रिक्स जब नहीं लगाते बेटा आपने याद करो केसीएल केवीएल लगाते हुए, ग्राफ थ्योरी में, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में, लोड फ्लो एनालिसिस में जेड बस वाई बस निकालते थे, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ी होगी, कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो जब भी हम ऐसे एक ह्यूज सिस्टम की एनालिसिस करते हैं तो उसको हम बेटा एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लीज माइंड इट, उसको किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? उसको किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम विल गिव अस आइगन वैल्यूज। अब वो आइगन वैल्यूज क्या है? आर नथिंग बट रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो दिस ds, माय डियर फ्रेंड, इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या है एक्चुअली में
It is nothing but ns is the numerator part of the system, and divided by ds is nothing but, my dear friend, characteristic equation of system. Characteristic equation of system. Or we can say beta matrix A, incident matrix. Or we can say beta matrix A, incident matrix. इतनी बात भी क्लियर है टू एवरीवन? सभी लोग बोलते रहिए वाला क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम डन। आगे बढ़ जाए ना बेटा, आप इस पॉइंट की आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई भी सिस्टम जैसे हम लोग लिए थे उसको हम फिर से इसमें ड्रॉ करने की, सॉरी लिखने की कोशिश करें तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जैसे अगर आपने v नॉट बाई वीएस लिखना है या मान लीजिए इधर से उधर कुछ भी लिखना है, तो आपको पता है जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हैंडल करते हैं तो उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर तो पक्का होंगे। इंडक्टर और कैपेसिटर तो पक्का होंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, वी आर हैविंग बेटा आर एंड एल हियर। अगर मैं इसको आपसे ये कहूं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में बताओ, तो आपने कहा ये इनपुट बेटा डीसी सप्लाई नहीं है, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में वी इन एस लिख दोगे, इसको बेटा ऐसे लिखोगे क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 है, इसको आर लिखोगे। अब मैंने आपसे कहा कि आप यार मुझे ना वी नॉट बाई वीएस इसका ट्रांसफर फंक्शन बताओ, तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे सर वी नॉट एस इज इक्वल टू एस एल, देखो एस एल इनटू बेटा वी आई एन एस डिवाइडेड बाय आर प्लस एस एल। अब वी आई एन एस को इधर ले आए तो हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट एस बाई वी आई एन एस, यानी कि क्या हो गया बेटा? लाप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट इज नथिंग बट ट्रांसफर फंक्शन विदाउट एनी इनिशियल कंडीशन। So that thing beta will be SL divided by R plus SL। ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन। तो आप देखिए सभी लोग कि जब भी हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की, तो जो इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं बेटा, यही मेन हमारे एस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। एस इज नथिंग बट लाप्लास ऑपरेटर और वी कैन सी बेटा फ्रीक्वेंसी में। तो इसी बेस पे अगर हम बात करें तो आप देखिए कैसे हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। हालांकि इसकी और भी मैथमेटिक्स होती है बट उतना हम डिटेल में नहीं जाते। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, we can write in this question beta some k, sorry some k dash, okay, and then beta we can write s plus z1 zeros, s plus z2, s plus z3 and so on, okay, and so on, and divided by beta we can write x to power n s plus p1 s plus p2 s plus p3 and so on, sorry and so ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता है, अगर और स्टैंडर्ड निकालो तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी भी ये स्टैंडर्ड नहीं है, और स्टैंडर्ड निकालें तो ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, z1 p1 को हम कॉमन ले लें। सो व्हाट आर z1 एंड p1 वी विल डिस्कस। ओके, तो z1 और p1 को अगर कॉमन लें तो बेटा कुछ कॉमन आएगा, उस कॉमन को k डैश से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हमने लिख दिया फाइनली k। ओके, और इसको ऐसे लिख रहे हैं s by z1 plus 1 s by z2 plus 1 s by z3 plus 1 and so on divided by beta we can write s to power n s by p1 plus 1 s by p2 plus 1 s by p3 plus 1 and so on। इतनी बात भी क्लियर है बेटा टू एवरीवन? पढ़ा से बोलो इतनी बात भी क्लियर है बेटा? नाउ अगले पॉइंट पे ये एक बात बताओ बेटा, अगर हम लोग सिंपल वे से बात करें तो 1 by z1 1 by z2 1 by z3 इन सबको बेटा हम टाइम कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो k into s tau z1, ओके, देन बेटा प्लस 1 s tau z2, okay, plus 1. What is the value of beta tau z1 is nothing but 1 by z2. What is the value of tau z2 is 1 by z2. So and so on. And similarly beta s tau z3 plus 1 and so on. And divided by, my dear friend, we can write s to power n s tau p1 plus 1 s tau p2 plus 1 s tau p3 plus 1 and so on. So in this way beta we can represent our this equation, and this final equation is called, my dear friend, is standard transfer function। इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन इसको बोलते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। चलिए इतनी बात भी क्लियर है बेटा, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। यार कोई बोलो चार लोगों को अभी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? यस एवरीवन, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है वाले, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन।
ना बेटा, अब ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, इसको हम अगले पेज पे ले चलते हैं और यहां से कुछ चीजें और सीखते हैं। ओके, यहां से कुछ चीजें और सीखते हैं। फीडबैक को बाद में देखते हैं, अभी बेसिक में हमें so in the today's lesson we will discuss the concept of transfer function as well as my dear friend the concept of pole and zero, दोनों की बातें करेंगे, the concept of pole and zero and the concept of transfer function। ये आगे बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, जहां पे हम ये लिख रहे हैं टाउ p1 टाउ p2 एंड सो ऑन, इन्हीं को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पे हम ऐसे लिख रहे हैं बेटा वेयर, ओके वो जो पहले लिखते थे उसको पहले लिखते थे वेयर बेटा, वेयर z1 z2 z3 and so called zeros of transfer function। okay where beta p1 p2 p3 and so on are called, या पूरा लिख देते बेटा, are called poles of transfer function। what is the physical significance we will discuss, poles of transfer function, poles of transfer function, इतनी बात भी क्लियर है बेटा, poles of transfer function, it is clear to everyone, poles of transfer function। फिर बेटा अगर हम इन poles को इस फैशन में लिख दें टाउ p1 एंड सो ऑन, तो एक अगला पॉइंट लिख देते हैं नेचुरल टाइम कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, नेचुरल टाइम कांस्टेंट। सो जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट विल ऑलवेज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल टाइम कांस्टेंट। ओके, सो नेचुरल टाइम कांस्टेंट, natural time constant, clear? So what are the values of it, this one, these tau p1 tau p2 are called natural time constant। okay, और ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल टाइम कांस्टेंट, मतलब s into something plus 1 s into something plus 2 और सेकंड ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर तो इसी फैशन में लिखा जाएगा। ओके, so now natural time constant, so here tau p1 tau p2 tau p3 and so on are called natural time constant, are called beta natural time constant। so what is the value of my dear friend tau p1? so tau p1 is nothing but beta, here tau p1 is nothing but 1 by p1 location of pole, tau p2 beta is nothing but 1 by p2 and so on location of pole। so now see here, the denominator of what is called my dear friend characteristic equation। so roots of the characteristic equation will decide the location of poles, and inverse of location of poles will be the natural time constant, and roots of characteristic equation is also called eigen values। इन्हीं पे हम बात आगे करते हैं। so एक बार सभी लोग बताओ यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर है? so this is the basic definition of beta our transfer function एंड डिटेल एनालिसिस भी हम कह सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की हमने स्टडी यहां तक कर ली है। ठीक है, आगे बढ़े, अब हम अगले पॉइंट पे चलना चाहें, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट बेटा पोल एंड जीरो ऑफ द सिस्टम, पोल एंड जीरो ऑफ द सिस्टम। सो इसको आज ही हम खत्म करेंगे, अब आज के लिए कल के लिए डिले नहीं देंगे, आज ही बात कर लेते हैं पोल एंड जीरो ऑफ द सिस्टम। तो अपने पास ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है बेटा, इस ट्रांसफर फंक्शन को यहां रखा और अब बात करते हैं पोल एंड जीरो ऑफ द सिस्टम। तो एक बार सभी लोग यार शेयर और लाइक कर दो, कुछ तो कमेंट आए तब आगे बढ़ूंगा। ओके, यस बेटा सभी लोग। यस बालक, पोल्स एंड जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। आप बताएंगे बालक पोल और जीरो होते क्या है? एवरीवन, पोल एंड जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, सभी लोग बोलो यार।
पोल्स एंड जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। चलिए बेटा, तो बात करते हैं पोल एंड जीरो की। थोड़ी सी बची हुई बात फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो पोल्स और जीरो की, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, जीरो, और इनको क्या बोलते हैं, पोल्स। अब क्वेश्चन आता है कि पोल्स और जीरो का सिग्निफिकेंट क्या है। तो पहला पॉइंट क्या लेते हैं बेटा, ट्रांसफर फंक्शन वी डिफाइन एट, ओके बहुत ध्यान सुनिएगा, विद यूनिट इंपल्स इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन किस पे डिफाइन होता है बेटा, एट यूनिट इंपल्स इनपुट। तो यहां लिख देते हैं बेटा, इट इज डिफाइंड एट यूनिट इंपल्स इनपुट, unit impulse unit impulse input with initial condition, with initial values of system and supply system and supply system and supply with initial values of system and supply are zeros, are जीरो। ओके, तो जो अपनी इनिशियल वैल्यूज होती है वो क्या है, जीरो है, और साथ में बेटा यूनिट इंपल्स पे इसको टेस्ट किया जाता है, ट्रांसफर फंक्शन को यूनिट इंपल्स पे, ठीक है ना। अब हम बात करें बेटा पहले जीरो की। सो सी बेटा, अब हमारे पास अगर आप देखें तो ट्रांसफर फंक्शन इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन फिल्टर ना। तो ऑब्जर्वेशन करिए, जब हम जीरोस की बात कर रहे हैं, जब हम पोल्स की बात कर रहे हैं, सो पोल्स आर नथिंग बट eigen values as I told you, और this term denominator term is nothing but characteristic equation। ओके, अब न्यूमरेटर पे है, तो न्यूमरेटर का काम क्या है बेटा, सो डेफिनेटली अगर फीडबैक प्रेजेंट है, सो दिस न्यूमरेटर कैन चेंज द स्टेबिलिटी फिनोमेना एज वेल। और अगर हम ये मान लें कि विदाउट फीडबैक मतलब जो आया दिस इज द फाइनल थिंग, सो इन दैट पर्टिकुलर केस बेटा जीरोस विल प्ले डेफिनेटली सम रोल, बट इन द गेन और एम्पलीट्यूड ऑफ द रिस्पांस, ओके, नॉट इन द स्टेबिलिटी, नॉट इन द स्टेबिलिटी। तो इन पॉइंट्स को समझने के लिए हम ऐसे जब यूनिट इंपल्स टेस्टिंग करते हैं बेटा, एंड भी बहुत ध्यान से सुनिएगा यार, ओके, हल्का कोई बोलना शुरू करेगा, चलिए खैर कोई ना। तो यार एक काम करते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारे कांसेप्ट है, तो वी विल डिस्कस इन द टुमारो सेशन। तब तक और सर्कुलेट हो, जल्दबाजी अभी है नहीं ग्रेड 24 और 25 के लिए। सो बेटा अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफर फंक्शन का हो, जैसे लास्ट टॉपिक में हमने सिस्टम की बात की थी, अभी ट्रांसफर फंक्शन की बात की है, कल हम पोल जीरो और कुछ नए टर्म्स की बात करेंगे, ओके। बट आपके पास जब समय अच्छा है, टाइम अच्छा है, बहुत ज्यादा है, तो आपको हर चीज अपने बेसिक से स्क्रैच से एडवांस लेवल तक सीखनी चाहिए। खास तौर से उन बेसिक टर्म्स पे बहुत काम करना चाहिए जो किसी भी सब्जेक्ट के आधार हैं। जैसे कंट्रोल सिस्टम में अगर मैं बात करूं, तो जैसे आधार क्या है बेटा, ट्रांसफर फंक्शन आधार है, फ्रीक्वेंसी डोमेन टाइम डोमेन एनालिसिस आधार है, सिस्टम क्या होता है इसको समझना चाहिए, पोल जीरो क्या होते हैं, फीडबैक क्या होता है, इन पे अगर हमारी अच्छी या एक मजबूत पकड़ बन जाती है, तो डेफिनेटली वी विल बी द नेक्स्ट मास्टर ऑफ आवर सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम, ओके। अब इसी पॉइंट को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, हम लोग नया बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जितने लोग सीरियस हैं फॉर द न्यू बैच, प्लीज बेटा हरी अप, है ना, बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, 2-3 दिन में। तो आप सभी लोग ये कोड यूज करके Y503 यूज करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ओके, बिकॉज इन द न्यू बेटा बैच द न्यू सब्जेक्ट विल गोइंग, द न्यू सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी स्टार्ट, और आप उस सब्जेक्ट से अपने आप को मजबूत करना पहले शुरू करिए। साथ में टाइम मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन एंजॉय आवर YouTube सेशन एज वेल, ओके। मैं और रेनू सर इस समय गेट 24 और 25 के लिए हैंडल कर रहे हैं, और बाकी कल एक और हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं फॉर द गेट 23, और फिर देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैसे और आपको आपके लिए बेहतर बनाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू बेटा, इट इज नथिंग बट ओके अबाउट द आवर ऐप, ओके। सो अभी थोड़ी सी पिक्चर ब्लर होगी, बट मैं कैमरा सेट करता हूं तो आपके लिए पिक्चर सेट हो जाएगी, ओके। नाउ सी माय डियर फ्रेंड, अच्छा ये मेरा G23 का टाइटल लगा हुआ है, आपने नहीं देखे तो उस पे भी काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि एवरीवन या इंस्टॉल द गेट एट 24/7 ऐप, बिकॉज़ दिस ऐप हैविंग बेटा मेनी फीचर्स, ओके, जैसे करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, डेली क्विज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन, हर एक टाइप के जो इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं, आपके जो सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट बेटा उनका जो पीडीएफ है, हर एक चीज अवेलेबल है, ओके। सो डेफिनेटली यू हैव टू इंस्टॉल गेट एट 24/7 ऐप, और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। एज वेल एज बेटा इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको सॉरी 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इन द सब्सक्रिप्शन, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़े बेटा। तो आई थिंक आज के सेशन में आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी,
अब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे बेटा अब पोल एंड जीरो कंसेप्ट की। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट पोल एंड जीरो कंसेप्ट्स। ओके, तो खैर डेफिनेशन यहां लिखी हुई है, बट इन डेफिनेशन को कैसे समझना है, कैसे फील करना है, इस पे हम बात थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है कल। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।